Today we will discuss about the equation of tangent and normal for a given curve. So let's suppose we have given a curve, say this curve is f of x, और इस कर्व पे हम मानते हैं कोई एक पॉइंट P जिसकी हम मानते हैं x एक्सिस पे डिस्टेंस इज x1 और y पे दैट इज y1. सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x1, y1. अब आप P से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे कर्व के ऊपर मूव करते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और वी कैन कंसिडर इट्स एज ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कंसिडर इट ए स्ट्रेट लाइन. सो पॉइंट P पे अब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट इज ए लाइन विच इज स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू द पॉइंट P, और वी कैन से दैट टेंजेंट ऑन एनी कर्व इज ए point curve at any point which passes through that point, and tangent will be straight line. So this is tangent, और आप ये मानिए this is Q point. Suppose if we move on x axis very small distance, that is we can say this distance is very small, del x. Similar on y axis we move very small distance, say this is y2. So distance on y axis is very very small, say this is del y. Okay, suppose this point P पे आपकी जो टेंजेंट है दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. दिस इज एंगल थीटा, तो थीटा विल बी द स्लोप, और वी कैन से दिस इज tan theta will be equal del y by del x, change in y divided by change in x, because tan theta is given by perpendicular by base, where the perpendicular is y2 minus y1, y2 minus y1, this one distance, or this distance is del y. Similar del x, say x2 minus x1, x2 minus x1. So tan theta is perpendicular by base, here that perpendicular distance is very small, so we can say it is del y. In similar manner on x axis this distance is very small, say del of x. Fine, this tan theta is called the slope, or we represented it by m equal tan theta equal dy by dx. Let's suppose for any given curve, if we differentiate the curve at that point P, so at that point P the slope of the curve and the tangent slope both are will be same. So हम जनरल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ कर्व देगा और आप dy by dx निकालेंगे, तो दैट dy by dx वैल्यू विल बी इक्वल टू द टेंजेंट स्लोप. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent is given by at that point P पे कोऑर्डिनेट x1 y1, और जो स्लोप है टेंजेंट का हम इसका मान लेते हैं स्लोप इज m1. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाई y माइनस y1 एट पॉइंट P पे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाई y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट वी आर कॉलिंग इट m1, m1 x माइनस x1. So this is the equation of tangent. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P पे, और आपको पता है कि जो नॉर्मल होगा दैट इज मेकिंग एन एंगल विद द टेंजेंट इज 90 डिग्री, तभी तो नॉर्मल होगा. सो नॉर्मल जो लाइन है दैट लाइन का आप स्लोप बोल दीजिए, स्लोप इज m2. सो एट दैट पॉइंट P वी वांट टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. So it is given by y minus y1 equal to m2 x minus x1, where m2 is the slope of normal, slope of normal. Okay, so इस पे अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, then we will discuss further. Question is this: find the point on the curve. कर्व आपको गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच
the tangent are first A parallel to the x-axis, and B perpendicular to x-axis, perpendicular to x-axis. Okay, so we have to given a curve and we have to find the point at that the tangent is parallel to x-axis and tangent is perpendicular to x-axis. So first, suppose this is curve, this is our point P. Suppose this point P is coordinate is x1 y1. So that x1 y1 value we have to calculate. At that point the tangent is parallel to x एक्सिस आपको गिवन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब अगर आपकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा दैट मीन्स तो m जो होगा टेन थीटा हम रखेंगे, दैट विल बी थीटा वैल्यू विल बी जीरो, बिकॉज कोई भी एक लाइन जो हम एंगल कैलकुलेट करते हैं मेजर करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से, और कोई एक लाइन अनदर लाइन है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है 0 डिग्री. सो m विल बी टेन जीरो, यानी स्लोप हो जाएगा आपका जीरो. और वही स्लोप कर्व का भी है पॉइंट P पे, तो आप कर्व के स्लोप को इक्वल रखोगे जीरो और वो पॉइंट आ जाएगा आपका x1. फिर x की वैल्यू फाइनली इक्वेशन में रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगा. सो फ्रॉम द कर्व इक्वेशन is x square by 9 plus y square by 16 equal to 1. Differentiate with respect to x. फर्स्ट आप इसको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेते हैं. डिवाइड करिए या आप एलसीएम करिए. 144 ये आ जाएगी आपकी 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज 16 इंटू 2 32x, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर प्लस 9 इंटू 2 y, एंड y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स. 144 इज कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया जीरो. जैसे x रेस टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x रेस टू द पावर n माइनस 1. सो n इज कमिंग फर्स्ट, so 16 into 2 that is 32, then x raised to the power 2 minus 1 that is 1. Here same y raised to the power 2 is coming with multiplication of 9 into 2, then y raised to the power 2 minus 1 that is y raised to the power 1, and differentiation of y is dy by dx, and constant differentiation is 0. So we are getting the value of dy by dx is minus 32x divided by 18y. By solving you will get this minus of 16x divided by 9y. This is the slope of tangent, that is m. That slope is equal to 0 at that point P. So slope को आप 0 के इक्वेट पुट करिए, 16x divided by y equal to 0, that is x will be 0. So आपका कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट P का, जो x1 जो वैल्यू आ गई, x1 कोऑर्डिनेट आ गया 0. सो y1 कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, x, क्योंकि दिस पॉइंट आल्सो लाई ऑन द कर्व. सो कर्व के ऊपर अगर ये x पॉइंट 0 है देन इट विल सेटिस्फाई द कर्व इक्वेशन. सो आप कर्व में ही अगेन इस x की वैल्यू को 0 रख दीजिए. सो x 0 हो गया, देन y स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 4. तो आपका जो पॉइंट आ गया है वो आ गया है 0 प्लस माइनस 4, दैट इज द पॉइंट, दैट इज x1 y1. तो ये आ गई आपकी वैल्यू 0 और सेकंड पॉइंट आ गया प्लस माइनस 4. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑल्सो एट दैट पॉइंट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वेयर y1 is
There are y is value 2 plus 4 and minus 4. So there are we are getting two line. फर्स्ट आप y की वैल्यू +4 रखिए और एक बार -4 और स्लोप आ गया आपका 0, दैट इज 0, x माइनस x1 इज 0. तो टेंजेंट की इक्वेशन बन गई आपकी. सेकंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, find the point where the tangent are perpendicular to the x-axis. When tangent are perpendicular to x-axis, that means slope of the tangent will be 9, या आप बोलेंगे कोई एक लाइन से लाइन इज x when this line is perpendicular to x-axis. तो ये लाइन x-axis के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री का. तो स्लोप आपका जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज tan 90. और tan 90 यानी इन्फिनेटिव को हम लिख सकते हैं 1/0. और अब अभी हमने देखा था लास्ट से जो आपका स्लोप आया था लास्ट टाइम 0 था और इस बारी 1/0, दैट इज इन्फिनिटी है. और स्लोप ऑफ कर्व कितना आया है आपका -16x/9y. दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व. और यही स्लोप कर्व का इक्वल हो जाएगा. आप बोलोगे कि जब आप नॉर्मल के लिए जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं हम, तो यहाँ पे m2 रखते हैं. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1. m1 इंटू m2 विल बी -1. दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी. व्हेन दी टू कर्व्स और टू lines are perpendicular to each other, then the product of their tangent will be -1. एक टेंजेंट को आप टेंजेंट बोलिए और दूसरी टेंजेंट हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज दे आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर. सो आप नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, -16x डिवाइड बाई 9y को इक्वेट कर देंगे. -16x डिवाइड बाई 9y को इक्वेट करेंगे 1/0, यानी स्लोप आ गया इस बार 1/0. देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0. और y इक्वल टू 0 आप इक्वेशन में रख दीजिए अपनी जो आपकी कर्व की थी. देन यू आर गेटिंग द x इक्वल टू 9. देन वी आर गेटिंग द वैल्यू x इक्वल टू +-3. सो नेक्स्ट पॉइंट इज +-3, 0 for the line which is perpendicular to x-axis. Thank you.